وہ ہانڈی بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا خوف سوا نیزے پر تھا، جبکہ ولی نے بنا اس پر دھیان دیے دادی کے انڈر اسے دے دیا کہ وہ اسے اچھا کھانا بنانا سکھائیں، اور خود وہ 2 دن سے ڈیرے پر تھا۔ بہن کے مل جانے کا شوق تھا یا اس بات کا کہ کمزوری تو اس کی بھی صادام کے قدموں تلے دبی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے دل و دماغ کی رضامندی سے، جبکہ اس پر کیا بیتے گی اس کے اس عمل سے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ بات بے بات جو ان کا ہاتھ اٹھتا تھا وہ نہیں اٹھ رہا تھا، نہ وہ کسی اور چیز سے اسے مار رہی تھی، مگر زبان کے تیر مسلسل جاری تھے۔ وہ اس کو ماں باپ کی گالیاں دیتے نہیں تھک رہی تھی، جبکہ جانا جو بالکل اس ماحول کا حصہ نہیں بن پا رہی تھی، رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ جل گیا تھا جگہ جگہ سے، جبکہ دادی کی باتیں اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھیں، جو وہ اس کی ماں اور باپ کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ جسمانی تکلیف کی الگ تکلیف تھی کہ کوئی اسے مارتا تھا، وہ جانتی تھی، تبھی اس کا جسم دکھتا، مگر یہ ذہنی اذیت اس کا تو کوئی ثانی ہی نہ تھا۔ کتنا چمچ چلائے گی، وہ اس کے پیچھے آ کر چیخی، مگر ہاتھ نہ اٹھا سکی، جبکہ جانا کا گویا دل ہی بیٹھ گیا ان کے ایک دم آنے سے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کیا میں تو اتنی کوئی منحوس ہے کہ میرے پوتے کو اپنے دام میں پھانس لیا، اور صورت دیکھو کیسے مومنی بنا کے کھڑی ہے۔ وہ اس کو نفرت سے دیکھ کر بولی، جبکہ پیچھے سے آئزہ آ گئی۔ دادی آپ کو باہر پھوپھو بلا رہی ہیں، اس نے کہا تو وہ سر ہلاتی پلٹی۔ اپنی نمل سے اپنے ولی کی شادی کراؤں گی، اور تجھے تو طلاق دلوا کر اس گاؤں سے باہر نکلواؤں گی، کہیں کی نہیں رہے گی تو۔ وہ نفرت سے پکارتی باہر چلی گئی، جبکہ نمل مسکرا دی۔ جانا کی بھیگی آنکھوں کو آئزہ نے افسوس سے دیکھا، اور نہ جانے اسے کیا ہوا۔ 2 قدم بڑھا کر وہ اس تک پہنچی، اور پتے کی طرح کانپتی اس بے قصور لڑکی کو گلے سے لگا کر اس کی کچھ تکلیف کم کرنا چاہی، جبکہ جانا بکھر گئی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے لالا کے پاس۔ یہاں نام نہ لو، یہ ظالموں کی قید ہے، تمہیں رہائی نہیں ملے گی، مگر تم دوسرے کام پر دھیان دو، اپنے شوہر کو کسی اور کا نہ ہونے دینا کبھی، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، اس پر توجہ دو، ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتی اسے سمجھانے لگی، مگر مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ حقیقت بتا گئی۔ اتنا بھی خوفناک نہیں ہے، آئزہ نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی اور مسکرا دی، جبکہ جانا نے برا سا منہ بنایا تو وہ ہنس دی۔ یہ کھانا تو نور بنا لے گی، چلو اس حویلی کی نئی مہمان سے ملنے چلتے ہیں، آئزہ نے کہا تو جانا نے باہر کی طرف اشارہ کیا کہ دادی روک لیں گی، جو آئزہ کو بھی سمجھ آ گیا۔ تب اس نے اپنی چادر اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، جاؤ تم یہ پہن جاؤ۔ اس نے آنکھ ماری، یعنی دادی سے چالاکی کرنے کو دونوں تیار تھی۔ جانا جھجکتی ہوئی باہر نکلی، دادی نے دیکھا اور منہ موڑ لیا، جبکہ آئزہ جب نکلی تو ان کی توجہ وہاں نہیں تھی۔ وہ دونوں نکلی تو ہنسنے لگی۔ تم کتنا پیارا ہنستی ہو، آئزہ نے پیار سے کہا تو وہ جھجک گئی۔ شرمانا بند کرو، اب چلو زریش کے پاس چلتے ہیں، پہلے میں اکیلی تھی، اب ہم 3 ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے، وہ افسوس سے بولی، اور زریش کے روم میں آ گئی، جو دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ آئزہ بی بی، مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں۔ وہ سسک کر اس کے قدموں میں جھکتی کہ آئزہ نے اسے تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو زری، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں اب، آئزہ کہو مجھے بس، تم ہمارے گھر کی ہو۔ سچی میں تو بڑی خوش ہوں، باقی شہریار اور تائی بھی کافی خوش ہیں، میں جانتی ہوں تائی کو تم موقع دو، وہ بہت اچھی ہیں، شہریار تمہارے پاس خود آئیں گے، اور ولی لالا بھی کافی پوزیسو ہیں، بس مگر غصے کے تیز ہیں، بس نہیں بہت زیادہ۔ اچانک جانا کے منہ سے نکلا تو آئزہ ہنس پڑی، جبکہ زریش کا تو دم نکل رہا تھا۔ یہ حقیقت اس کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ جو تھے اسے وہ چاہیے تھے۔ اچھا تم ریلیکس ہو جاؤ، تمہارے اماں ابا بھی یہاں ملنے آیا کریں گے، ٹینشن مت لو، وہ بولی اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تو زریش اور جانا دونوں انگلیاں مروڑتی بیٹھی ہوئی تھی۔ اوفو بس بھی کرو تم دونوں، ایک ہی بات کر رہی ہو، وہ چڑ کر بولی۔ زریش تم بتاؤ، حالانکہ ہم پہلے بھی ملے ہیں، مگر تم سے پوچھا ہی نہیں میں نے کہ تم نے کتنا پڑھا، اب تو خیر ہم سب کی پڑھائی رک گئی ہے، وہ افسوس سے بولی۔ زریش نے اس کی طرف دیکھا، کل 2 دن سے وہ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی، اور سیاہ جوڑے میں اب وہ اپنے نواب کا غم مناتی سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ آئزہ کو حیرت ہوئی۔ بس میٹرک، اس نے جواب دیا۔ اچھا، مجھے لگا تم کالج بھی جاتی ہو، آئزہ بولی تو اس کی آنکھوں میں ایک دم صادام آ گیا جسے وہ چھپاتی۔
सर झुका गई। और तुम? उसने जाना की तरफ देखा। लाला जो ज़्यादा तालीम पसंद नहीं करते। मैंने भी एफए किया है, मगर मैं पढ़ना चाहती थी। अगर ये सब ना होता तो मैं उनको मना लेती। जाना मुस्कुरा कर बोली। उसे यूं नॉर्मली बात करना अच्छा लग रहा था। अच्छा, अब वली लाला को मना लो ना। आयज़ा हंसी तो जाना मुस्कुरा भी ना सकी। वो बहुत सख्त हैं। एक बार फिर से जाना ने कहा तो आयज़ा खामोश हो गई। जो नर्म था उसने कौन सा उसके साथ अच्छा किया था। अभी वो कोई बात करती कि धड़ से दरवाज़ा खुला और नमल अंदर आई। अरे, हवेली की 3 बेइज्जत हुई लड़कियां यहाँ बैठी हैं। वो ये तंज उछालती बोली तो आयज़ा को बुरा लगा, जबकि जाना उससे घबरा कर अपनी जगह से उठी। नमल को ये मंजर देखकर तकवीयत मिली थी। ज़रिश अलग घबराई थी। हम कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं, जाओ तुम। आयज़ा ने जाना का हाथ पकड़कर दोबारा अपने साथ बिठा लिया, जबकि ज़रिश को भी घूर कर बिठाया। ज़्यादा मत उड़ो, तुम्हारे पर भी कटवाना आते हैं मुझे। नमल को सख्त जहर लगी थी आयज़ा। तो कटवा दो। अगर मेरे पर होंगे तो कटेंगे ना। वो अपनी बात पर मज़ा लेती हुई हंसी, जबकि जाना को भी हंसी आ गई। ज़रिश अब उन दोनों को देख रही थी बस। दूर हटो, आयज़ा चीखी, मगर नमल को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। तभी ज़रिश भी बीच में आई। ज़रिश उन सबको ही देख रही थी। तुम ना ज़्यादा मत हंसो। अभी मैंने बीजान को बुला लिया ना तो तीनों पिटोगी। आयज़ा पर तो जोर चल नहीं सकता था। तभी वो जाना पर झपटी, जबकि आयज़ा और ज़रिश हैरान रह गई। वो जाना के रेशम से बाल खींचने में मसरूफ़ खड़ी थी। दूर हटो, आयज़ा चीखी, मगर नमल को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। तभी ज़रिश भी बीच में आई। छोड़ो, वो बोली, जबकि नमल ने उसको थप्पड़ दे मारा। ये सारा काम वो दादी की शह पर कर रही थी और न जाने ज़रिश को क्या हुआ। उल्टा ज़रिश ने उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारे, जिससे नमल हिल गई। आज के बाद मुझ पर हाथ मत उठाना, वो गुस्से से बोली, और ना ही इन पर। वो आंखें दिखाते हुए बोली, तुम दोनों को तो वली से पिटवाऊंगी मैं। वो रोती चीखती नीचे चली गई, जबकि ज़रिश ने बहादुरी दिखा दी तो अब उसका दम निकल रहा था। आयज़ा और जाना उसकी भीगी आंखों को हैरत से देख रहे थे और अचानक आयज़ा हंस पड़ी, जबकि जाना भी भीगी पलकों से मुस्कुराई। बहादुरी दिखाकर रो रही हो? आयज़ा बोली तो ज़रिश और रोने लगी। वली घर में दाखिल हुआ तो साथ शहरियार और फरहाद भी थे। वो अंदर आए तो दादी के साथ लिपटी बुरी तरह रोती नमल को पाया तो फरहाद सबसे पहले आगे बढ़ा। क्या हुआ तुम्हें? उसने पूछा तो नमल हिचकियां लेती वली को सब कुछ बताने लगी, जबकि फरहाद ने भी वली की तरफ देखा। शहरियार ने ज़्यादा मुंह नहीं लगाया क्योंकि वो जानता था कि नमल कैसी है, और ये बात वली भी जानता था, मगर दादी के बोलने पर सर हिलाता वो कमरे में आया। अरे, सारी कमबख्तें इकट्ठी हो गईं। हाय, अब मेरा क्या होगा? दादी चीखी, जबकि शहरियार ने बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत ना समझी और कमरे में आया तो आयज़ा आज पहले से मुख्तलिफ थी। कैसी हो? वो मुस्कुरा कर बोला। आज पता है आपको? ज़रिश ने निमल को थप्पड़ मारे। वो जल्दी से उसे बताने लगी। शहरियार उसके करीब आने पर गौर से उसे देखने लगा। अच्छा, फिर? उसे अच्छा लगा था आयज़ा का इस तरह खुश होना। फिर क्या, रोने लगी और मैं और जाना खूब हंसे। वो बेड पर बैठती मुस्कुराई, फ्रेश सी लग रही थी, जैसे कई दिनों की धुंध उस पर से छट गई हो। लगता है दोस्ती हो गई तुम्हारी उनसे। शहरियार भी उसके पास बैठा और उसके शाने पर हाथ रखा, जिसे आयज़ा ने महसूस नहीं किया। हाँ ना, इसलिए क्योंकि हम थोड़ी सी हैं और बस हमने दोस्ती कर ली। वो चहकी, जबकि शहरियार ने उसके शाने पर गिरफ्त सख्त की और उसे अपने नज़दीक किया। मुझसे भी दोस्ती कर लो, वो बोला। आप दूर हों। नहीं, मैं आज तुम्हारे दिल में अपने लिए सारी बदगुमानियों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। शहरियार, आयज़ा ने तंबीह की, जबकि उसने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे कुछ भी मज़ीद कहने से रोक दिया। जाना कमरे में आने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि वली ने ज़रिश से बात करने का इरादा कल पर डाल दिया। वो काफ़ी देर से जाना का इंतज़ार कर रहा था कि नमल कमरे में आ गई। वली, वो बोली तो वली सीधा हुआ। हाँ बोलो, कुछ चाहिए? उसने पूछा। तुम अपनी बीवी से पूछो कि उसने मुझे क्यों मारा, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। वो हिचकियों से रोती वली के गले का हार बन गई और तभी कमरे में जाना दाखिल हुई और ये मंजर देखकर दरवाजे पर ही थम गई। वली, बस तुम पूछो इससे, मुझे नहीं पता। देखो, आ भी गई। नमल मजीद वली के करीब बैठी जाना को नफरत से देखते हुए बोली। वली ने नमल को वहीं छोड़ा और उठा। जाना उसके इस तरह से उठने पर खौफजदा हुई। तुमने नमल पर हाथ उठाया?
वो संजीदगी से उसके नाजुक हाथों से चाय का कप लेता, मध्यम आवाज में बोला। निगाह उसके कांपते लबों पर थी, जबकि उठती गिरती पलकों का रक्स जानलेवा सा लगा। वो घबराई घबराई सी सीधा उसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। उसके देखने का अंदाज नमल को हैरान कर गया। जाना ने कुछ ना करते हुए भी उससे माफी मांगी, जिससे नमल का चेहरा खिल उठा। आइंदा ख्याल रखना वरना अच्छा नहीं होगा, इडियट, वो उसको कहती वली की तरफ मुस्कुराहट उछालती बाहर चली गई, जबकि वली जो उसके जाने का इंतजार कर रहा था, एक हाथ से दरवाजा बंद किया। उसने हाथ से दरवाजा बंद किया और बजते हुए फोन को उठाया। क्या मुसीबत है, वो चीखा। सरकार लोहार माजिद है, आप जानते हैं, आपसे आपके गांव का, उसको और उसकी बेटी को जो सादाम ने गोली मार दी है, दोनों जख्मी हालत में मिले हैं। सादिक बोला तो वली की कनपटियां फटने वाली हुई। क्यों मारा उसने? वो नाहक किसी को कुछ नहीं कहता। उसे यकीन नहीं आया, जैसे अपनी दुश्मन की सिफतों से भी वाकिफ था वो जी उसकी बेटी उनकी नज़र से पानी ले रही थी। सादाम ने उसकी जवान बेटी और उसकी टांगें गोलियों से भून दी जी, सादिक बता रहा था, जबकि वली फ़ोन बंद कर गया। तो तुम ऐसे सामने आओगे? वो दांत कचकचा कर बोला। उसके गांव का एक एक फर्द उसके लिए अहम था। स्याह शॉल और स्याह लिबास में, वो हाथ में सिगार लिए, दूसरे हाथ में शराब का गिलास थामे डेरे पर होने वाली दावत से महजूज हो रहा था, जबकि शहाब और इनायत उसकी अंदरूनी कैफियत से आगाह थे, मगर वो किसी से इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। बाकी उसके दोस्त उसके पास पहली बार ऐसा जश्न मनाने पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। अरे ओ शहाब बाऊ, हमारा सुलगता दिल का जश्न मनाओ। वो दोनों हाथ उठाता अपनी इलाकाई पठानी मौसीकी पर रक्स करता, बिलाशुबा जानलेवा लग रहा था। शहाब ने उसको गौर से देखा और उसका साथ देता शराब पीने लगा। हमारा तरफ से सबका खुला इजाज़त है। दुश्मन गांव का जिस औरत जिस मर्द को देखे, गोली से उसको जलने का काबिल ना छोड़े, वो ऐलान करता हुआ, जबकि ठिठुरती ठंडी रात में लकड़ियों के जलते अलाव पर उसने शराब फेंकी तो आग के शोले मचल कर जोश में आए, जबकि शोर हंगामा अलहदा मचा, क्योंकि उसके गांव का सरदार आज रक्स कर रहा था। ए बाबा साईं, अपने बाप को देखकर वो उनके नज़दीक गया तो वो उसकी हालत पर हैरान रह गए। तुम हमारा दिल बहलाने के लिए लड़की का इंतज़ाम करो, हम शादी करना चाहता है, वो बोला। तुम सच कह रहा है? फजल खान को यकीन आया। सच ही सच सरदार साहब, उड़ा दो गांव में खबर, सादाम खान से जो अपना बेटी ब्याना चाहता है वो आ जाए। सच ही सच है सरदार साहब, उड़ा दो गांव में खबर, सादाम खान से जो अपना बेटी ब्याना चाहता है वो आ जाए। और फिर से उस अलाव के गिर्द रक्स करता। फजल खान ने उसका हाथ पकड़ा। तुम गांव का औरत से शादी करेगा? फजल खान को ये बात पसंद ना आई। अरे बाबा साईं, तुम खुद ढूंढेगा। हाँ, सुर्ख आंखों से वो मुस्कुराते लबों से उन्हें समझाने लगा और दोबारा अलाव के पास जाकर हादी के साथ रक्स करता। न जाने वो क्या करना चाह रहा था। वो बाहर रात को निकली तो वली कमरे में मौजूद नहीं था। तभी वो आसानी से सो गई, और जब उसकी आंख खुली वो तब भी नहीं था। तभी वो जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आ गई, जहाँ आयजा भी आज अलग ही रंग में मुस्कुराती दिख रही थी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? जाना आखिर पूछ बैठी। कुछ नहीं, आयजा सटपट आई। तभी वो नाश्ता बनाने लगी। अब कुछ कुछ नाश्ता बना ही लेती थी, और आयजा की मदद से अब वो अच्छा नाश्ता बना चुकी थी और खुश भी थी। दादी को नाश्ता देकर वो छुप गई। वली भी करके जा चुका था नाश्ता। जरिश नहीं आई नीचे, ना उसने नाश्ता किया। जाना ने याद दिलाया। हाँ, शहरयार कह रहे थे कि वो उससे मिलने जाएंगे, मगर ज़रूरी फ़ोन कॉल से उन्हें आज शहर जाना पड़ा। उसकी तफसील पर वो सर हिला गई। तभी रुकैया बेगम के साथ जरिश भी वहीं आ गई। दोपहर ढल आई थी। आयजा और जाना उससे बातें करती और बोलने पर मजबूर कर रही थी, जबकि वो रुकैया बेगम के पास से खिलाए गए पराठे को बस बस कर रही थी, जबकि वो दोनों हंसने लगी। तभी वो जैसे थम गई। दिल पर आहट सी महसूस हुई। उसके इर्द गिर्द उस सितमगर की खुशबू फैल गई। वो उठकर बाहर जाती के बाहर से शोर की आवाज़ पर वो सभी बाहर आईं। सादाम फजल खान आया है, जाओ पूरे गांव में इश्तहार लगवा डाले। वो शान से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। स्याह लिबास में मुरझाते हुए वजूद को इग्नोर करता, आंखों में बेपनाह आंसू लिए खड़ी अपनी बहन को देखने लगा, जबकि वली अपने डेरे से भागता हुआ हवेली पहुंचा था। दादी भी गुस्से से लाल पीली हो रही थी, जबकि नमल का तो दिल ही बैठ गया था। क्या चीज़ था वो शख्स जो उसके सामने खड़ा था, और फरहाद की नज़रें उसके वजूद पर थी जिसे वो उस घर में पहली बार देख रहा था, यानी जरिश पर। अरे ये क्यों आया है यहाँ आज? निकल जा हमारे घर के दरवाजे से। हमारे घर के दरवाजे दुश्मनों पर खुले नहीं होते। दादी की चिंगाड़ती आवाज़ पर उसने रुख मोड़ कर देखा।
हम बुढ़ाओं से बात नहीं करता। मुलाजिम जरा साइड पर हो। उसके सर्द अंदाज पर सबके मुंह खुल गए। सादाम फजल खान, जिस हवेली में तुम खड़े हो ना, वो तुम्हारे सामने है। यहाँ 2 मिनट भी खड़ा होना चाहते हो तो तमीज मत भूलना। तुम्हारी बहन का घर है, जरा कमर झुका कर आना। वली मुस्कुराकर तंज करने लगा, जबकि सादाम ने सिगार लबों से निकाल कर उसके हाथ में थमा दी। तुम जरा चुप होकर खड़ा हो, तुम्हारा सूरत भी हम नहीं देखना चाहता। वो दो टोक बोलकर जाना की तरफ बढ़ने लगा। वली में उसको रोकने की हिम्मत जैसे मफकूद हो गई, क्योंकि वो सरपंच के साथ आया था जो अब अंदर दाखिल हो रहे थे। वो आगे बढ़ा। सब औरतों ने उसके आगे बढ़ने की वजह से रास्ता छोड़ दिया और वो जाना के अन सामने आ खड़ा हुआ। जरिश एक तरफ होती उस बेहिस की तरफ देख रही थी। कैसे वो उससे लाताल्लुक हो चुका था। उसमें उसका क्या कसूर था कि उसकी हकीकत कुछ और ही थी। मगर उसकी भीगी सुर्ख आंखों को देखने की जहमत किए बिना वो अपनी बहन की तरफ बढ़ा और उसका चेहरा गौर से देखने लगा। जाना की सिसकी लाउंज में गूंजी। सादाम की आंखों पर अगर स्याह गॉगल्स नहीं होते तो शायद वो खड़े हुए वहां लोग उसकी आंखों की तकलीफ को लाजमी देखते। मगर वो तो छुपा गया था। हर चीज, हर जज्बा उसने बहन के हाथ में चमचा देखा और उसके निढाल होते रोते गिरते वजूद को सादाम ने बाजुओं में भर लिया। उस चमचे को उसने दूर उछाला तो ये मंजर वहां खड़े सब लोगों ने देखा। लाला मैं यह नहीं रहना चाहती। उसकी आवाज टूट रही थी, बिखर रही थी। सादाम की कनपटियां गोया फटने को तैयार थी। 4 सू सन्नाटा था। सब बस उसके लफ्जों के इंतजार में थे। जाना साईं, संभालो खुद को। जाना के बेहोश से होते वजूद को वो संभालना चाह रहा था, मगर इतने दिनों बाद उसे सामने देखकर वो हवास खो बैठी। तपती धूप में जरा सी छांव मिलने पर वो खुद को संभाल ना सकी और उसके बाजुओं में ही गिर गई। वली भागता हुआ उसके नजदीक पहुंचा। जाना, जाना, उसने उसके गाल थपथपाए और सादिक को चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने का कहा। अगर इसको कुछ हुआ, चौधरी वली तुम्हारा मूछें उतरवा कर तुम्हारा हथेली पर सजा देगा। सादाम उसकी आंखों में खून आशाम आंखें गाड़ते हुए बोला। वो सादाम से यहाँ से जाने के लिए बात करना चाहती थी। तभी वो किचन में बैठी सादाम के आने का इंतजार करने लगी। मगर सद अफसोस कि वो तो 2 दिन से नहीं आ रहा था, तो आज कैसे आता। मगर उसे एक उम्मीद थी जैसे वो आ जाए। नूर भी मुतमईन सी काम कर रही थी। वैसे तो शुमाइला ने उसे मना किया था, मगर वो अब खुद से आने लगी थी और आज वैसे भी शुमाइला की तबीयत नासाज थी। तभी वो नहीं आई और सारे काम नूर ही संभाल रही थी। नूर, मुझे डर लगता है यहाँ। बेला ने अपने कांपते हाथों की वजह बताई। तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ बसने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं। उसने शाने उचकाकर कहा और एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा। हादी शान से खड़ा था वहाँ, ब्लू जीन्स पर अपर पहने। वो अपनी सुर्खो सफ़ेद रंगत लिए बेला को देख रहा था, जबकि नूर को पहली बार वो बेहद दिलकश लगा। मगर वो बेला को क्यों देख रहा था? उसके मुंह पर कितने जख्म थे कि किसी से देखे से न जाए। वजूद नोखेज तो नहीं था, फिर भी उसकी दिलचस्प निगाहें बेला पर क्यों थी। हादी अंदर आया और बेला के नज़दीक आ खड़ा हुआ। तुम्हारे जख्म भरे नहीं अभी तक? मैंने दवाई भी भिजवाई थी। सादाम से बातों बातों में वो बेला की हकीकत जान गया था। जी वो बेला ने नूर की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा। हादी साहब, मुलाजमों पर काफ़ी मेहरबान होने लगे हैं आजकल आप। शुमाइला आपी से मैंने ले ली थी दवाई, तुम्हें देना भूल गई। वो तंज करती उसके हाथ में ट्यूब और कुछ मेडिसिन पकड़ा गई। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस ना ही करो तो बेहतर होगा। हादी ने चिढ़कर जवाब दिया। अच्छा, लिमिट्स तो आप क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ के मुलाजिम महफूज नहीं है। वो जलती कुर्ती बोली तो हादी के माथे पर बल पड़े, मगर वो उस लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता था और मुस्कुरा दिया। अगर पहली नज़र में कोई इतना भा जाता है और दिल के तार उसके लिए छिड़ने लगते हैं, तो ये हकीकत था कि उसकी धड़कनें उन निशानात से बेहाल होती हुई धड़कनों में रक्स करना चाहती थी। मेरे साथ चलोगी? उसने अपनी तबीयत के बरक्स बेला के सामने हाथ फैलाया। बेला रोने लगी। मजीद उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर नूर की बातें कि वो बद किरदार है। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, वो जल्दी से बोली। मगर तुम्हारा शोहर अच्छा आदमी नहीं है। हादी उसके रोने पर हैरान हुआ। जिस सोसाइटी में वो उठता बैठता था वहाँ ये सब बिलाशुबा आम था, और ये लड़की इतनी सी बात पर रोने लगी। बदगुमान होने की बजाय वो मजीद उसकी तरफ माइल होता देखने लगा।
अच्छा रोना बंद करो, मज़ीद क्यूट लग रही हो, ये दवाई लेती रहना और ट्यूब भी लगा लो, ये शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने रिकमेंड की हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वो मुस्कुरा कर उसके गाल को छूता पलट गया। ये सब हादी के लिए बेशक आम था, मगर बेला उस लम्स पर हैरान रह गई। कभी इतनी नरमी से कोई पेश ही कब आया था उसके साथ। वो मुंह खोले उस रास्ते को देखने लगी जहाँ से हादी अभी गुजरा था, जबकि नूर ने गुस्से से उसका हाथ झिंझोड़ा। तुम पागल हो, वो तुम्हें छू कर गया, अपनी गंदगी दिखा कर गया और तुम हवनक बनी खड़ी हो। वो बोली तो बेला होश में आई। मुझे भी ऐसे ही छुआ था, मैंने तो थप्पड़ रख कर मारा। एक तुम हो, हैरत है। वो तंजिया नखवत से बोलती उसे मखमसे में छोड़कर दोबारा काम में मगन हो गई, मगर किचन में बेला की सिसकियां उसको तस्कीन देने का बाइस बन रही थी। ये सब अचानक हुआ था कि उसका दिल हादी के लिए धड़कने लगा। वो था भी काफ़ी हैंडसम, हाँ अपने बड़े भाई से कम, मगर हैंडसम काफ़ी था। ऊपर से उसका बेबाक और लापरवाह अंदाज अब उसे अच्छा लगने लगा था। हाँ शायद बेला ना आती तो उसे इन सब एहसासात से रूशनास ना कराती, मगर अब वो तहैया कर चुकी थी उस लड़की को निकाल कर हादी की तवज्जो खुद पर करने की।